study the second part of Unit 2, that is intrauterine devices drug delivery system. In this, we insert the IUD through the cervix root of the female in uterus. And the small object is placed inside the uterus through the cervix root, avoiding the pregnancy. A small string attaches to IUD, hangs down into the upper part of the vagina. The IUD can be easily removed or by pulling or by the string gently using the forceps. It is done by the medical supervision. Now, the effectiveness is 99.2% to 99.9% in the birth control, but 0% against the STDs, AIDS, and HIV. The IUD's mechanism is work by preventing the fertilization. In this, copper IUD is releasing copper ions into the uterine cavity, which are like toxic for the sperm entry to the uterus in the fallopian tube. The mechanism is like this: copper IUD in this copper will be released, and copper this link to the toxicity to the sperm. Now there is many IUDs for examples में आता है कि हार्मोनल IUDs होते हैं जिसके अंदर जनरली 20 माइक्रोग्राम ऑफ लेवो एस्ट्रोजन लेवेनोर्गिस्टेरॉल प्रेजेंट होता है, जो ईच डे इसकी थिकनेस का कहता है सर्वाइकल म्यूकस की बढ़ा देता है एंड इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ एंड वायबिलिटी ऑफ दिस फॉर्म. इसमें क्या होता है एडवांटेज का, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, प्राइवेट एंड डिस्क्रीट मेथड, इट इज़ मोर सेफर एंड इनिशियल कॉस्ट इज हाई बट नो लेटर एक्सपेंसेस इज देयर. इट इज़ कन्वीनियंट, द rapidly reversible by female for a long time birth control and wanted to retain fertility. Or it doesn't cause any effect in the, it basically doesn't cause effect in breast milk or and other drug interactions, and it doesn't disturb the hormonal cycle. Better option for the woman for avoiding the pill, safe equivalent to sterilization. Injectables and subdermal implantation is better than, like, almost equivalent to that. Now the less failure rate and less risk of endometrial cancer. Now disadvantages is basically it lead to uterine proliferation and medical professional in this, and we need 3 to 6 months. In beginning we had the heavy flow, but after later it will, although it get flow get reduced by the increase in duration of the time of insertion of the IUD. Now it led to unpredictable bleeding. Now side effects of the levoergosterol is less, and it can even lead to abdominal pain, complexation pain, mood swings, nausea. The ADRs are lesser with the time. Sometimes undergo hormonal disturbance and cause pelvic inflammation. There is three type of IODs depending on the medication level: non-medicated IOD, copper releasing IOD, and hormonal IOD. So basically, non-medicated IOD, it is made up of plastic or the metal object. It is placed inside the uterus of the female. It is basically work by modulating the environment of the uterus. इसमें बेसिकली होता क्या है, ये क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कर देती है इन यूट्रस. इन्फ्लेमेशन हो गई तो फिर क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है, इन्फ्लेमेटरी जो सिस्टम है जो करता है अगेंस्ट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो वो आ जाकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या करेंगे वो लोग फैगोसाइटोसिस कर लेंगे ऑफ द स्पर्म. फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स द लिपर लूप. In the second one is copper releasing IOD. It is copper releasing IOD because it releases the copper ion in the uterus and suppresses the mobility of the sperm, and they can't fertilize. So therefore decrease the fertilizing capacity of the sperm. For example, copper T, CU7 and multiloader 375. Now hormonal releasing IOD, they basically suppress the releasing of the sperm and its mobility by making the cervix hostile, means unfriendly for the sperm to be, like, fertilize. Now mucus become thick, and this the hormones basically will remember by mucus becoming thick and sticky, due to which sperm will not be able to reach the uterus. LNG20 and progesterate are the examples of that. And now we see the copper T has the following advantage. Copper T, as we had seen in the copper releasing IOD, copper T basically it is safer because it is non-hormonal. Okay, it increase higher, more effective and long. It is basically good for long term use. It is cost effective and reversible. Now disadvantages it may expel out in 1 year, increasing the menstrual bleeding initially. STDs do not protect it. Now hormonal releasing IOD or progesterone containing IODs. In this T shape basically होता है, और silicon reservoir has levosterol and or progesterone dispersed in the versatile
जो बेसिकल मेन आईओडी है वो ऐसे मतलब वो प्लेस्ड होता है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, जैसे देख सकते हैं। इसमें ये कॉपर वाला और ये हार्मोनल वाला है। कॉपर वाला जो बेसिकली होता है उसके अंदर हमने जैसे देख रहे थे ये रिंग्स दिख रही है, बट इसके अंदर नहीं है अवेलेबल ये हार्मोनल वाले में आईओडी में। लोग बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ आईओडीज देखेंगे। बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईओडी इन वुमेन लाइक जिसके पास इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है कभी भी, विच कुडंट बी दिस इरेगुलर ब्लीडिंग का रीज़न ये भी हो सकता है कि कैंसर इन फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन हो सकता है, करंट और रिसेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेल्विक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन पहले से ही हो रखा हो तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है इसके अंदर। या फिर उन फीमेल्स को उनको पहले से बहुत लाइक हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और फिर पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो वो और पेन कॉज कर सकता है आईयूडी। स्मॉल यूट्रस और एब्डोमिनल शेप्ड यूट्रस को भी अवॉइड करना चाहिए आईयूडी, क्योंकि शेप में से फिट नहीं होने के लिए। फिर ओवेरियन और सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल कैंसर वाले जो पेशेंट को उसको भी अवॉइड करना चाहिए। एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर इरेगुलर ब्लीडिंग, ये वो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस गिवन है। अब ये जो हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसने पढ़ाई है, क्या आईयूडी क्या होता है, ब्लॉक द फर्टिलाइजेशन प्रोजेस्टेरॉन, रिलीज द हार्मोनल आईयूडी, प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, इम्पेयर द प्रोजेस्टेरॉन विच थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कर देता है और दस प्रोटेक्टिंग द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द फेलोपियन ट्यूब। कॉपर आईडीज बेसिकली कहते हैं नॉन हार्मोनल होते हैं बट दे रिलीज द कॉपर आयन इन द सर्वाइकल म्यूकस विच मेक्स द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट इनसाइड द यूट्रस, और ये ऑल्सो स्पर्म की मोटिलिटी भी डिक्रीज करते हैं कॉपर आयंस। दीज आयंस आर हार्मफुल फॉर द स्पर्म एंड येट स्टडी। नाउ कॉपर रिलीजिंग आईडीज आर हाईली इफेक्टिव इन द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एज दे अवॉइड द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट इन द यूट्रस। तो उसके बाद कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन में पढ़ लिया, उनको पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द आईयूडी। अब नाउ जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे इसकी बेसिकली हिस्ट्री तो अनक्लियर है कि कोई एविडेंस ही नहीं है 20th सेंचुरी में, प्रायर 20th सेंचुरी, बट हम लोगों ने मिडल ईस्ट में पढ़ा था लाइक इट इज़ लाइक क्रूएलिटी वी कैन से। व्हाट दे डिड इज़ उन्होंने जो कैमल है उनकी जो फीमेल कैमल है उनके जो यूट्रस में दे इंसर्टेड द स्टोन पेबल इनसाइड द यूट्रस। So in 1909, the Dr. Richards discovered the IUD, documentation the idea of inserting a ring that made the silkworm gut into the uterus। तो उन्होंने रिंग करा जो सिल्क की बनी होती है वो इंसर्ट की। बेसिकली रिचर्ड इन्होंने एक्चुअली डिस्कवर किया, वो तो लाइक पहले वाले एक्सपेरिमेंट थे, बट इन एक्चुअल आईयूडी 1909 में डॉक्टर रिचर्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद फिर इन मिड ऑफ 1920 द कारी पेस्ट और अर्नेस्ट Griffenberg gave the similar idea of this theory in this IOD constructed from the silkworm gut and flexible metal wire, basically for example OTA ring। इसके बाद डॉक्टर जैकोब आए, लाइक हमने पहले ऊपर पढ़ा इसमें बस सिल्कवर्म था, बस इसमें क्या है कि इसमें हमें मेटल रिंग भी हमने अटैच कर दी। अब डॉक्टर जैकोब ने क्या करा कि डिस्कवर्ड द इंसर्टिंग फर्स्ट प्लास्टिक डिलीवरी लेपर लूप, उसको कहा प्लास्टिक है बेसिकली, इसमें यूज़ हुआ था इन 1962। बेसिकली एक डिवाइस किया जो इंसर्ट करा इंसर्टर ट्यूब के थ्रू, और इससे क्या एक स्ट्रिंग अटैच कर दे कि ना, और वो बेसिकली फॉर डिलीवरिंग इट्स एंड रिमूवल के लिए आसान हो जाए, इंसर्ट एंड रिमूवल ऑफ दिस एंड ईजीली लाइक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था ये। सो बेसिकली 1969 जो एक स्पेसिफिक ईयर है जिसमें क्या किया कि ना वुमेन के लिए रिपोर्टेडली हायर से लाइक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इसमें शुरू होने लग गई इसके चक्कर में, ये आईडी, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा था। तो फिर इसलिए क्या डॉक्टर हॉवर्ड ने क्या किया, बेसिकली डिक्रीज किया साइज ऑफ आईओडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इन 1970 डॉक्टर एंटेरियो डेवलपिंग द टी शेप्ड आईओडी हैविंग द प्रोजेस्टेरॉन मतलब हार्मोनल वाला ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। अब एच रॉबिन्स एंड कंपनी ने क्या किया, इसको मार्केट ही कर दिया डायरेक्ट 1971 में, बट इससे क्या होगी हायर लाइक बहुत ज़्यादा इसमें स्टार्टिंग में तो लाइक बहुत बिका क्योंकि सस्ता एंड ऑल भी था, बट आफ्टर 3 ईयर वो विड्रॉ कर लेगा मार्केट से। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग जो नीचे अटैच होती है वो सील नहीं थी, इसकी वजह से क्या होता है बैक्टीरिया आ जाती थी इन्फेक्शन कॉज करने, विच कॉज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन ड्यू टू डिफ़िकल्ट इन इंसर्शन हो गया, और फिर डिस्टर्बिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल नीड नॉट फ्रीक्वेंट रिमूवल, और द पेनफुल ब्लीडिंग होती है इसके से अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेशन, ये सब भी आने लगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि डॉक्टर ग्रेफिनबर्ग किसने क्या किया कि ना सिल्वर जो अटैच नहीं थी उसने सिल्वर अराउंड द रिंग कर दिया, जो रिंग के अराउंड सिल्वर कर दिया बेसिकली। अब उससे दिक्कत हुई, वो टर्न ब्लूइश ब्लैक हो गया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सिल्वर इनसाइड अस। सो बेसिकली वो क्या किया, उसके बाद जर्मन सिल्वर वायर, फिर उन्होंने जर्मन सिल्वर वायर यूज़ किया जैसे विट इज़ मेड अप ऑफ एलॉय, एंड द pregnancy rate was found to be dropped to 1.6%। सो डॉक्टर लेज़र मार्गस ने क्या किया 1960 में, फर्स्ट उनकी जो पेशेंट थी उनकी वो वाइफ ही खुद थी। बेसिकली उन्होंने प्रेजेंटली यूज़ आईओडी एज एन सेफ एंड इफेक्टिव एंड फॉर
उन लोगों ने उन पे यूज़ किया जो आयोडीन उन्होंने बनवाई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बेसिक फॉर emergency contraception. The copper IUD is basically used and it can be inserted within the 5 days after the unprotected intercourse. Treatment of this basically for the heavy menstrual flow or bleeding basically. तो heavy जो menstrual flow था उसको भी लाइक बचाता है। कौन से करता है? प्रोजेस्टेरॉन IUD करता है विच इज़ यूज टू रिड्यूस द हैवी फ्लो इन द menstrual bleeding. फॉर एग्जाम्पल्स का है MIRENA मिरना। बेसिकली इट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन द ओरल प्रोजेस्टेरॉन पिल्स। ठीक है। अब है मेंस्ट्रुअल हार्मोनल थेरेपी। मेंस्ट्रुअल हार्मोनल थेरेपी बेसिकली मिरेना इज इन अल्टरनेटिव मेथड फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेस्टेरॉन ऑफ कॉम्बिनेशन टू द मेनोपॉज। एक हार्मोन इज रिप्लेस्ड थेरेपी इन दिस इट इज सिचुएबल फॉर द वुमेन हु आर इंटॉलरेट टू ओरल प्रोजेस्टेरॉन पिल। जो ओरल पिल से थोड़ा इंटॉलरेंस शो करती है ना, तो उनके लिए ये बेटर है इसके मेंस्ट्रुअल हार्मोनल थेरेपी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।